salam, whatever way we convey greeting to you. Please accept that greetings on behalf of Fencing Association of India, Sports Authority of India, and complete fencing fraternity of India, as well as we have got friends from Nepal, and I have come to know that today we got few coaches from Bangladesh also logged in. So as you know, the Zoom session is expanding and we have crossed 305 mark. Big applause and clap to all of you for that. आप सबको फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डायरेक्टर इस जूम सेशन में के तीसरे दिन वेलकम करता हूं। आप सबको ये बताते हुए बड़ा हर्षोल्लास महसूस हो रहा है कि हमारे पास आज नेपाल और बांग्लादेश से भी कुछ कोचेज आए हैं। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको सभी को वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज फेंसिंग का जूम सेशन का तीसरा है। टुडे इज द थर्ड डे ऑफ द जूम सेशन। On the first day, we were given an elaborated talk on history of fencing by Ashok Khatri ji. Yesterday, there was an extraordinary class by Krishan ji on the saber. He introduced about the saber, footwork techniques, hand movements, what all exercises you should say do, and more. The best part is that कि आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। उसी सीक्वेंस को आज बढ़ाते हुए नंबर तीसरे दिन हमारे पास आज एक अनदर वेरी गुड स्पीकर। I have personally worked with him as a colleague, as a player. His name is Mr. Sagar Lagu. ये असिस्टेंट फेंसिंग कोच हैं अभी साई सेंटर थेलेसरी केरला में। His specialization is saber, although he has produced national champions EP and foil as well. सागर के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा इंट्रोडक्शन के लिए। सैबर एक ऐसा गेम था जिसका 2005 तक या 2006 तक हमें बहुत सी चीजें क्लियर नहीं थी फेंसिंग के सैबर के बारे में। It was in 2008-9 when Sagar did NIS, and after that he did courses in Olympic solidarity courses and the SAI sponsored courses, FI sponsored courses abroad. That in 2010 Asian Games, 2010 एशियन गेम्स के कैंप में फेंसिंग का जो कंफ्यूजन थी थोड़ी उसको क्लियर करने में चंद एक लोग थे इंडिया में, उसमें सागर का सबसे ज्यादा योगदान था। और आप देखिए, मैं बायस नहीं हूं, आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स वन इवेंट। Saber is one event which has come up in a very stronger way in India, and all, if not all, 90% of the contribution goes to Sagar. His student Bhavani Devi, currently ranked 42 or 47th in the world, one of two, is our, as of now she is qualified for Olympics, and it is my indeed honor to introduce you to Sagar today, who will be of attack in cyber fencing. I could not, when I was drafting this program, जब मैं प्रोग्राम बना रहा था, मुझे सागर के सिवा कोई कोच सूझा नहीं जो इस क्लास को ले सके। So please be patient, enjoy the session. If you have any questions, send on the WhatsApp community and a chat. Over to you, Sagar. Best of luck. I'll just unmute you here. Krishan Kosab, just find him and unmute him. Yes, I found him. Morning, everyone. This is Sagar Lagu, fencing coach from Sai Teleshari. ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों ने एक नई ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है जिसमें हम गेम्स के बारे में नैरेटिव पर्सपेक्ट हम लोग सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारे व्यूज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे को नॉलेज मिला है, वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। It was a great initiative by our Fencing Association of India and Sports Authority of India that they have started these online classes. तो आज का जो हमारा बेसिकली इशू है वो साइबर है। विक्रम बोला कि पहले साइबर को इंडिया में नॉट मच पर्टिकुलरली कंसिडर बिकॉज इतना अच्छा रिजल्ट नहीं थे हमारे पास साइबर में।
पर 2009-10 के बाद से हमारे पास साइबर में बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए, हम बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल्स आ रहे हैं। आज के डेट में इंडिया साइबर इवेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट क्रेडिट गोज टू ऑल द कोचेस फ्रॉम द इंडिया, those who are working in the cyber, and all the dignitaries who are supporting from the FAI. आज की क्लास जो हम शुरू कर रहे हैं वो बेसिकली इसका जो सब्जेक्ट है वो है अटैक्स के बारे में। आप सब लोग जानते हो कि साइबर में अटैक्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अटैक्स है उसका जो हम लोग जितने अटैक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द पॉइंट्स, जिस फ्रेंसर का अटैक्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट करने का रेशियो सबसे ज्यादा है, उसके विक्टिम परसेंटेज ज्यादा होते हैं, ऐसे बोला जाता है साइबर में। दैट्स से इन द साइबर कि जिसका जो ज्यादा अटैक्स को कर सकता है कन्वर्ट, उसके विक्टिम परसेंटेज जो है वो साइबर में ज्यादा करके काउंट होते हैं। तो बेसिकली साइबर में अटैक्स क्या होता है ये सब लोग जानते हैं कि इट्स मोर ऑफेंसिव गेम। आप लोग जानते होंगे कि फेंसिंग में सबसे आइस हॉकी के बाद साइबर ये एक ऐसा इवेंट है जो सबसे सेकंड फास्टेस्ट गेम करके काउंट हुआ था वर्ल्ड में। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज हमारा 15 टच का जो बाउट है कंप्लीट साइबर का, वो हार्डली 1 मिनट या 1.5 मिनट में कंप्लीट होता है, जबकि हमारा बेसिक टाइम है वो एक सिंपल अटैक्स होते हैं और जो दूसरे टाइप के अटैक है वो कंपाउंड अटैक्स होते हैं। तो सिंपल अटैक वो अटैक्स है बेसिकली, आज हमने यहाँ पे देखा है कि अटैक, व्हाट इज द बेसिकली अटैक। अटैक का जो डेफिनेशन है, an attack is the initial offensive action made by extending the arm and continuously threatening the opponent's target। जो हम अपने हाथ और लेग से फेंसिंग के फुटवर्क के द्वारा जो मूवमेंट करते हैं, जो कंटिन्यूअसली अपोनेंट को हिट करने के लिए जो मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट को अटैक कहा जाता है। In order to attack to be avoid successfully, the fencer must accelerate their hand and feet towards the target। हमारे को जो फेंसिंग में अटैक को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अटैक को एग्जीक्यूट करने का तरीका ये होता है कि हमारा हाथ फॉरवर्ड बाय लेग अपोनेंट के टारगेट के वैलिड टारगेट की तरफ कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड एक्सेलरेट करें। जैसे कहा जाता है कि फॉइल में हम जैसे बोलते हैं कि द पॉइंट शुड बी थ्रेटनिंग टुवर्ड्स अपोनेंट टारगेट। इन साइबर में ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइबर एक कटिंग और थ्रस्टिंग वेपन है। तो साइबर में the saber where the blade need not to be threaten the target when arm is extended in the right way of the can still be given। जब हम साइबर में अटैक हमारा स्टार्ट करते हैं, तब हमारा पॉइंट जो है ब्लेड का वो अपोनेंट के टारगेट की तरफ कंटिन्यूअसली थ्रेटनिंग करते हुए होना चाहिए, ऐसे कंपल्सरी नहीं है। We can initiate the attack with the guard continuously threatening towards the opponent a valid target and followed by the launch, step launch or fletch। That will be counted as a साइबर। कि साइबर में थ्रेटनिंग और ट्रस्टिंग और कटिंग वेपन होने की वजह से इसमें आप दोनों तरीके से अटैक कर सकते हो। आप यू कैन पुट द पॉइंट इन फ्रंट एंड स्टार्ट द एक्शन, एंड यू कैन स्टार्ट विद द गार्ड टुवर्ड्स अपोनेंट वैलिड टारगेट एंड स्टार्ट द एक्शन। द टाइप ऑफ अटैक्स फेंसिंग में बेसिकली दो टाइप के अटैक काउंट होते हैं। जैसे एक है सिंपल अटैक और दूसरा होता है कंपाउंड अटैक। सिंपल अटैक वो तरीका है जिसमें हम कंप्लीट फेंसिंग मूवमेंट जो है हमारे फेंसिंग एक्शन, एक एक्शन जो है वो एक फेंसिंग टाइम में स्टार्ट करते हैं। एक फेंसिंग टाइम का मतलब है कि हमारे को हाथ ओपन करने के लिए हमारे अनगार्ड पोजीशन से हाथ ओपन करने तक, डायरेक्ट ओपन करने तक के लिए लगने वाला टाइम, जिसमें हम एक ही बार में हाथ ओपन करके उसको अपोनेंट को वाले टारगेट को टच करते हैं with no other intention to on rather than hitting the opponent। मींस उसमें कोई फेंट देना या कोई उसको मिसगाइड करना ऐसे कोई ना करके हम सीधा डायरेक्ट उसके वाले टारगेट पे हिट करते हैं। दैट्स कॉल्ड सिंपल अटैक। कंपाउंड अटैक वो है अटैक है जिसमें हम एक या दो फेंसिंग टाइम, मींस हम एक में प्रोवोक करते हैं और दूसरे में हम उसको हिट करते हैं, या आप बोलो दो या तीन, जैसे हम फेंट करते हैं
फिर उसको अलग जगह पे हिट कर, एक ओपन टारगेट पे फेंट करके दूसरे क्लोज टारगेट जैसे वो पैरी करके ओपन करते हैं, हम वहां पे उसको हिट करते हैं। तो जहाँ पे एक या दो से ज्यादा फेंसिंग टाइम यूज होते हैं उसको हम कंपाउंड अटैक बोलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द सिंपल अटैक्स। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्शंस दिखा पाऊंगी इसमें। आज लॉकडाउन होने की वजह से कुछ एक्शंस मेरे पास नहीं थे जो मैंने खुद वीडियो शूट करके बनाए। मेरे को पता है मैं इतना अच्छा फेंसर नहीं हूँ, पर स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव द प्रॉपर आइडिया हाउ टू परफॉर्म द एक्शंस। सो द डायरेक्ट अटैक मीन जिस होता है जिस लाइन में हम ब्लेड को ओपन करते हैं, हम उसी लाइन में जब टारगेट के ऊपर हिट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज डायरेक्ट हिट इन द सिंपल अटैक। और इनडायरेक्ट हिट्स वो होते हैं जिस लाइन में हम ओपन करते हैं ब्लेड, पर सडनली वी कैन सी द अपोनेंट इज मेकिंग अ पारे एंड वी सडनली चेंज द लाइन एंड हिट ऑन अनदर टारगेट, अनदर ओपन टारगेट, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट अटैक। बट ये दोनों एक्शन एक ही फेंसिंग टाइम में कंप्लीट होने चाहिए। इसमें जो सिंपल अटैक्स है उसके आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें हम आपको सिंपल अटैक के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें है एक छोटा सा, स्टार्टिंग में हम एक वीडियो देखेंगे सैबर को प्रॉपर्ली होल्ड कैसे करते हैं। कल किशन सर ने उनको अच्छा से दिखाया था सब लोगों को कि सैबर को कैसे प्रॉपर्ली होल्ड करना चाहिए। एक छोटी वीडियो में भी है आपको दिखाता हूँ जिसमें सैबर को होल्ड कैसे करना है प्रॉपर्ली, वो हमने बताया। वेपन को होल्ड करते हो, इम्पोर्टेंट है। सो व्हेनेवर यू आर होल्डिंग द वेपन, आपने ध्यान रखना है कि आपके जो फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट टू इंडेक्स फिंगर्स है, तुम्हारा थंब और इंडेक्स फिंगर, इसको हम इसके बीच में इसको होल्ड करना है। एंड दिस थ्री फिंगर्स विल बी फॉर द सपोर्ट। मेनली ये दो फिंगर में होल्ड करता हूँ। आप जब होल्ड कर रहे हो तो आपके गार्ड के पास और आपके के पास दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, कहीं पे भी हमारा हाथ टच नहीं करना चाहिए। Hold like this, so we can make a proper movement when we are doing the cyber any actions। जो भी एक्शन हम साइबर में करेंगे तो हमारा प्रॉपर्ली उसको फिंगर को मूवमेंट करने के लिए उसका सपोर्ट मिलेगा। इसलिए जब भी आप होल्ड करते हो तो याद रखिए कि दोनों जगह से आपको टच नहीं करना, सेंटर में होल्ड करना है, एंड दैट विल बी दिस टू इंडेक्स फिंगर्स। थैंक यू। हमने इसमें देखा कि हम कैसे प्रॉपर्ली साइबर को होल्ड कर सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बोला आपको कि साइबर जब भी हम होल्ड करते हैं तो उसका जो अगला गार्ड वाला जो पार्ट है वो, और जो आपका पीछे का पॉमल है, उस दोनों के बीच में गैप होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे फेंसर्स को हैबिट होता है कि वो पीछे पॉमल को पकड़ के साइबर को होल्ड करते हैं, पर बेसिकली उससे नुकसान ये होता है कि जब हम उसको एक्चुअल में खेलने के लिए जाते हैं तब हम लोग ज्यादा फिंगर मूवमेंट उससे कर नहीं सकते। इसकी वजह से प्रॉब्लम ही क्या होता है कि हमारे को फिंगर मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है और हमारा आर्म वाइडली मूव करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आप जब भी होल्ड करते हो साइबर को तो उसको कोशिश करो कि वो साइबर में दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, मीन्स आपको गार्ड के पास से और पोमल के पास से थोड़ा सा गैप रखें। हमारा फर्स्ट सेक्शन आज का है, बेसिकली हम साइबर में 3 बेसिक कट यूज करते हैं। जो कट वैसे बहुत सारे हैं पर बेसिकली जो ज्यादा करके यूज करते हैं कट, वो है हमारा हेड कट, फ्लांग पे कट होता है और चेस्ट पे कट होता है। तो वी विल सी द हाउ टू स्टार्ट द हेड कट इन द फेंसिंग नाउ, साइबर फेंसिंग। स्टार्टिंग पहले आपने ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्शन स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट थिंग आपका मूवमेंट पहले वही होगा कि आपका गार्ड पहले आप यहाँ पे आपको वही करके हिट करना, इस तरह से मूव करना चाहिए। गार्ड मूव करने के बाद सीधा ब्लेड आपको टारगेट पे हिट करना है। आप हिट करते हो तो हाथ को ऊपर मत उठाइए, हाथ लिफ्ट करके हिट नहीं करना चाहिए। सेम लाइन में किसी लाइन में हम वो हिट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो वीडियो की आवाज म्यूट कर दें प्लीज, वीडियो की आवाज कम कर दें। थैंक यू।
डिस्टरबेंस है। वीडियो की आवाज बंद करके वीडियो चलाओ। थैंक यू। हाँ, वीडियो की आवाज मैं करता हूँ। जैसे अब मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे यहाँ पे कि हेलो, जो फर्स्ट कट आपने दिखाया आपको मास्क के ऊपर, जैसे अब मास्क के ऊपर बेसिकली हम जब भी कट करते हैं तो हमारा जो मास्क पे हिट करने के टाइम हम जो भी एक्शन करते हैं उसमें जो हाथ होता है, जिसमें हाथ में जब हम वेपन करते हैं हमेशा उससे पहले स्टार्ट कीजिए। जो गार्ड होता है वो पहले हमारा अपोनेंट के वैलिड टारगेट के ऊपर टर्न करेगा। जब हम अनगार्ड होल्ड करते हैं, हम जब भी तो होल्ड करने के टाइम पे अनगार्ड पोजीशन में हमारा हाथ हमेशा 1/3 सुपन पोजीशन में होता है, थोड़ा साइड में होता है। जब भी हम होल्ड करके उसको स्टार्ट करेंगे एक्शन, तो हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि विल स्टार्ट विद द हैंड फर्स्ट एंड देन इट विल गो कंटिन्यूअसली टुवर्ड द अपोनेंट वैलिड टारगेट। जैसे कभी भी जो रेफरी देखते हैं या बाउट में जब भी एक्शन को देखा जाता है तो उसमें हमेशा यही कंसीडर किया जाता है कि किसने पहले हाथ से स्टार्ट किया एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय द लेग। दैट इज अ परफेक्ट अटैक व्हाट वी से। द सेकंड एक्शन वी आर गोइंग टू सी, that is on the chest cut. On the flank, okay. तो जैसे ही अपोनेंट टारगेट ओपन करेगा, टारगेट ओपन करो, आपने फर्स्ट काम करना है कि आपके ब्लेड को पहले लाइन फेस ओपन करना है फॉरवर्ड, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द कट ऑन द टारगेट। सो वंस यू ओपन यू हैव टू मेक 1 and 2 forward, make a 1 and 2 forward, make a 1 and 2 forward. The complete action will be like this. So now we have seen that the same action on the flank. जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारे जब भी हम कट बेसिक सिखाते हैं, जैसे सिखाना शुरू करते हैं, तो हमेशा उसको ध्यान रखिए कि जब भी आप अटैक शुरू करते हो तो हमेशा उसका गार्ड का पोजीशनिंग है जो उस वाले टारगेट के ऊपर पहले स्टार्ट करके फिर उसके बाद अटैक को स्टार्ट करना है। ये नहीं कि हमने उसको हाथ को पहले उठाया, वैसे करके साइड में से लेके गए और हिट किया। ऐसा अगर कोई भी एक्शन हम लोग हिट करेंगे तो इतना वैलिड एक्शन काउंट नहीं होगा। जैसे रेफरी भी अगर देखेगा कोई हाथ उठा के हिट कर रहा है या चेंज कर बाद में ऐसे हाथ पीछे पीछे चेंज कर रहा है, तो एक्शन कोई भी वैलिड नहीं काउंट किया जाता। क्योंकि साइबर में जैसे आप एक बार हाथ शुरू करते हो उसके बाद वो कंटिन्यू फिनिश करना चाहिए अपोनेंट के टारगेट के ऊपर। अगर हम हाथ शुरू करते हैं और फिर बाद में हाथ पीछे खींच के फिर उसको चेंज करते हैं तो अटैक वैलिड अटैक करके काउंट नहीं होता। इसलिए जब भी हम अटैक कोई भी एक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने अभी पहले मास्क के ऊपर देखा कि हम वी स्टार्ट विद द गार्ड एंड देन हिट ऑन द मास्क, द सेम वे इन द फ्लैंक वी हैव सीन दैट वी स्टार्ट विद द हैंड फर्स्ट on that valid target and then we have make a hit on that valid target. बट जैसे अभी आपको मैंने 1 2 करके अलग अलग पार्ट में दिखाया इस एक्शन को, पर वो एक्शन बेसिकली जब आप परफॉर्म करोगे तो वो एक्शन कंप्लीटली परफॉर्म होना जरूरी है। अगला जो एक्शन है जो मैंने आपको बताया था चेस्ट कट। So we can see the chest cut. See how to make a cut on the chest. We have a basically 3 cuts box called a mask cut, flank cut and the chest cut. And next step will be followed by the punch rule. ये बेसिकली ज्यादा करके यूज होने वाले कट्स है। उसमें से चेस्ट कट आप कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सेम वे जैसे हमने पहले फ्लैंक कट किया, we have to divide the action into 2 parts and then we have to teach when we start. So whenever we start, up जैसे ही अपोनेंट टारगेट ओपन करता है, okay, we have to turn the blade first forward and then we have to make a cut here. So we have to start like 1 2 1 2 1 2. The complete action will be 1 2.
complete action we have to perform. We are learning the simple attacks now. जैसे पहले ये बेसिकली हमने जो अभी आपको मैंने दिखाया है वो चेस्ट कट है। ये 3 कट, वैसे बहुत सारे कट्स हैं, जैसे हम आर्म अंडर आर्म कट्स करते हैं या हैंड अबव हैंड कट करते हैं या हम लोग शोल्डर के ऊपर हिट्स करते हैं। तो वो बेसिकली ये सारे कट्स हैं जो हम सारे अभी इस छोटे सेशन में दिखा नहीं सकेंगे आपको। तो ये बेसिकली 3 कट है, जो चेस्ट कट हो गया, फ्लैंक कट हो गया और मास कट हो गया। ये बेसिकली कॉमनली यूज किया जाता है हर एक्शन में। हम जब भी देते हैं तो सिखाने के टाइम पे ये पहले 3 कट्स को हम लोग सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग अगली एक्शन देखेंगे कि जैसे हमने सिंपल अटैक परफॉर्म करते हैं तो उसको कैसे हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। हाउ टू परफॉर्म इन द लॉन्च। No, but he ran. Yeah. No, don't react to it. इसमें कोच उनको बता रहा है कि आप हाथ से पहले शुरू करो और इट विल बी फॉलोड बाय द लॉन्च। ये बेसिक तरीका है सिखाने का। बेसिकली हम लोग कभी भी अबाउट में ऐसे नहीं करते, पर हाथ पहले खोलने के लिए हैबिट होने के लिए चाहिए, वो भी होनी चाहिए हैबिट। वो हैबिट होने के लिए करके हम लोग ये एक्सरसाइज है बेसिक, जिसमें हम पहले कट करवा के फिर लॉन्च करवाना शुरू करते हैं। स्लोली इट विल स्टार्ट एक्सेलरेट। So I will make it longer and longer. Yes. No, I did, and centimeter by centimeter, I increase the distance. इसमें बता रहा है कि धीरे धीरे वो डिस्टेंस पहले छोटा डिस्टेंस रखेंगे, उसके बाद डिस्टेंस को बढ़ाता जाएगा, जिससे कि हमारा No, the important is, even if you don't hit, to stop, to try to hit your. इसमें कोच बता रहा है अभी कि जैसे हम लोग जब हिट करते हैं तो पहले हमारा हाथ खुलना चाहिए, ना कि हाथ और लेग दोनों साइमल्टेनियसली। हाथ शुरू होने के बाद फिर हमारा लेग स्टार्ट करना चाहिए। अगर हाथ लेग दोनों स्टार्ट हो गया तो एक्चुअल बाउट में जब हम खेलेंगे तो हमारा पहले लेग निकलेगा और हाथ बाद में आएगा। इसलिए हम लोग जब भी सिखाने की कोशिश करते हैं, शुरू में हम जब प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमेशा यही ट्राई करना चाहिए कि पहले हाथ खोले, उसके बाद उसको लेग उसको फॉलो करे। Not with your leg. Yes. That side. Hit. That side was very good. 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 And I increase, you see the distance. Okay. Try to do it. So this was a one more action what I showed. ऐसे ही हमने उसको ग्रेजुअली शुरू करने। जैसे हम पहले स्टार्टिंग में मैंने दिखाया कि आपको कोच ने दिखाया आपने इसमें कि पहले हिट करके फिर लॉन्च करवाते हैं हम लोग, फिर धीरे धीरे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, जिसमें वो कंटिन्यू फ्लो में एक्शन करना शुरू करेगा। इससे एक हैबिट, अच्छी हैबिट क्रिएट होती है कि जब भी हम अटैक कोई भी स्टार्ट करते हैं तो हम पहले उसको हाथ से शुरू करने की कोशिश करेंगे। ये इसके लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो जो भी एक्शन है, जैसे मैंने आपको दिखाया फ्लैंक कट हो या चेस्ट कट हो या जो मास कट हो या हैंड कट हो, कोई भी जो कट्स है जब आप उसको करवाना शुरू करते हो तो हमेशा ऐसे ही शुरू कीजिए। पहले स्टार्ट विद द कट एंड द फॉलोड बाय द स्टेप फॉरवर्ड और लॉन्च। जैसे अब इसमें सेम एक्शन में हम जब इसका स्टेप लॉन्च करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने पहले हाथ शुरू करना है, फिर हाथ स्लोली प्रोग्रेसिवली फॉरवर्ड करते हुए हमने इसको स्टेप करना है, एंड देन वी हैव टू मेक कंप्लीट ओपन द हैंड एंड वी हैव टू मेक अ लॉन्च। That will be precision to make a step launch in the action. That's what the basic is said. The जैसे जैसे प्लेयर एक अच्छी लेवल पे चला जाएगा तो he is having his own tempo to make actions. तब उस टाइम उन लोगों को उसको वो टेम्पो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर फेंसर का अपना खुद का टेम्पो अलग अलग होता है। तो जैसे वो एडवांसली सीखता जाएगा, उसको टाइमिंग को, अपने खुद के टाइमिंग को समझता जाएगा, उसके हिसाब से वो अपने आप उसमें अल्टरेशन करेगा। पर जब आप बेसिक सिखाते हो किसी को इन्फ्लुएंसर को, तो बेसिक सिखाने के टाइम पे हमेशा ये याद रखिए कि वी हैव टू गो इन दिस स्लो वे।
This is the way to go for actions. The next thing we will see is a direct thrust. How to make a direct thrust. That is also a simple attack, which is performed with the one fencing time. And always with the chill. इस एक्शन में हमेशा आप याद रखिए, जब भी आप डायरेक्ट रश करते हो तो जिस अनगार्ड पोजीशन में हमने पहले पॉइंट को डाउन करना है, जो हमारा ब्लेड का पॉइंट है वो सीधा अपोनेंट के चेस्ट के ऊपर आएगा, उसके बाद हम हैंड एक्शन करके यू विल फॉलोड बाय द लॉन्च। इस एक्शन में यही होगा, पहले पॉइंट डाउन होगा, फिर उसके बाद हैंड एक्शन होगा और फिर उसके बाद लॉन्च को परफॉर्म होगा। Separate very clearly. You need to separate very clearly. Extension And forward. Yes. And after that it is. This is the point. Yes. This is the position in the ring. Not this. Yes. That's right. Not too much. That means, I say, I didn't say to do this. To do this, yes. Good. And now step launch. तो आपने यहाँ पे एक्शन में अभी देखा कि जैसे हम जब भी हम सिंपल डायरेक्ट ट्रस्ट करते क्रिएट करते तो हमेशा वही होना चाहिए, पॉइंट डाउन करके हाथ एक्सटेंड करके उसके बाद हमारा लॉन्च एक्शन स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बाकी सारे एक्शन में आपको बोला है कि इन ईच एंड एवरी एक्शन वी हैव टू मेक अ हैबिट दैट हम जब भी एक्शन स्टार्ट करते हैं तो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द हैंड फर्स्ट, followed by the first turning or threatening towards a opponent target, and it should be followed by the launch or clutch. That is the perfect way to make the attack. So this was the action. मैं कोशिश करूंगा कि इस सेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा एक्शंस दिखा सकूं जो कि मैन्युअली रेगुलरली आपको यूज होती है। तो नेक्स्ट एक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द बंद रोल। बंद रोल एक स्लाइडिंग एक्शन है जो हम अपोनेंट के टारगेट के We will ऊपर see that it's called band roll. We have to make a action on the opponent's target with the sliding the blade downwards. In that action, once you see the target is open from the chest, you have to make a touch forward here and slide it back forward. You have to make a complete rotation in the arm. That's called band roll attack. You have to make action. Target is open, you have to make a touch and line forward. Touch and pull it back. Okay? The complete action is forward. See? Okay. Now we will see the compound attacks. So this was the action that's we call a band roll. ये बहुत ज्यादा कॉमनली साइबर में यूज होता है, बाकी किसी इवेंट में नहीं होता ये फीचर। दिस इज अ स्लाइडिंग एक्शन व्हिच वी मेक विद द पावर एंड फोर्स। कि अपोनेंट की बेसिकली हम अपोनेंट जो अच्छी पैरी करता है वो पैरी के अगेंस्ट भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि बंद रोल हम लोग जो ब्लेड की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको यूज करके हिट करते हैं। तो व्हेनेवर ही मेक अ पारी, इफ यू मेक इट विद द फुल पावर, द इवन अंदर उसका ब्लेड का जो अपोनेंट का अंदर का टिप है वो भी जाके अपोनेंट को टच करता है। दैट्स वेरी कॉमनली यूज्ड इन द साइबर। इट्स वेरी फेमस एंड favorite action for many sports person in the saber. That's called a band roll. This is my narrative, my perspective, what I am showing you. Maybe देखो जैसे साइबर में बहुत सारे स्कूल्स है, जैसे कल सर ने बोला कि that nothing we can say रशियन स्कूल, हंगेरियन स्कूल और इटालियन स्कूल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। पर अगर आप खुद भी उधर उस तरीके में जाके देखोगे तो दो कोच काम करने वाले उनके बीच में कभी भी आपको एक जैसे एक्शंस नहीं दिखेंगे। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव, अपना नैरेटिव अलग होता है और किसी का सिखाने के पीछे अपना खुद का माइंड का सोच कुछ अलग होता है। तो आपको टेक्निक्स में
बेसिक टेक्निक वही लगेगी, पर उसको जो सिखाने के अलग अलग तरीके हैं वो हर कोच के हिसाब से अलग अलग होते रहेंगे। तो आप कभी भी उस मामले में ना पढ़ने की कोशिश करें कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। अच्छा सब है, क्योंकि सबके पास वर्ल्ड चैंपियंस है और सबके पास रिजल्ट अच्छा है। तो कोई बुरा और कोई अच्छा हम कभी नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बहस में पढ़ते हैं कि इसकी स्टाइल अच्छी है, वो स्टाइल अच्छी है। जो स्टाइल आप अच्छे से परफॉर्म कर सको और जो आपको स्टाइल पॉइंट ला के दे सके बोर्ड में, दैट स्टाइल कॉल वी कैन कॉल अ परफेक्ट स्टाइल। अगर इंडियन फेंसर को शायद हंगेरियन स्टाइल पसंद मींस मैच ना कर पाए या रशियन स्टाइल मैच ना कर पाए, so we have to create our own style what the fencer of our country can perform it easily. That's what we feel in the cyber event. So the next section what we are going to see is change cuts. चेंज कट्स मीन्स जो मैंने आपको पहले बताया, जैसे साइबर में सिंपल डायरेक्ट एक्शंस में दो टाइप के अलग अलग एक्शंस होते हैं। एक एक्शन होता है जहां पे हम लोग डायरेक्टली हिट करते हैं, और जो दूसरा एक्शन होता है जिसमें हम लोग एक ओपन टारगेट पे हम लोग एक्शन को शुरू करते हैं, सिंपल टैक्स नाउ, पर हम देखते हैं कि वो अटैक एक्शन का जो हम जहां पे हम हिट करने के लिए जा रहे थे वो एरिया क्लोज हो चुका है, उसने पैरी की हुई है। तो सडनली वी हैव टू टेक अ डिसीजन एंड वी हैव टू मेक अ हिट व्हिच टारगेट इज ओपन। तो उस ओपन टारगेट पे हिट करने के लिए हम लोग सडनली दूसरी जगह पे जाते हैं। सो दैट्स सिंपल टैक्स नाउ। हमने पहले देखा कि हमने डायरेक्ट सिंपल डायरेक्ट अटैक्स कैसे करते हैं, जो डायरेक्ट कट्स कैसे करना है। Now we will see the how we will do the indirect cuts. Indirect cuts means जैसे आप एक लाइन में उसको शुरू करते हो और suddenly you see that opponent is making a parry और आप suddenly लाइन चेंज करके दूसरे एरिया में हिट करते हो, that's called indirect cut. That will be performed within the one fencing time. So अभी हम देखेंगे कि indirect cuts को कैसे किया जाता है। पहले हम मास टू फ्लंग देखेंगे कैसे करना है। इसमें आपने देखना है कि जैसे ही अपोनेंट आपको दिखता है कि अपोनेंट का मास टारगेट ओपन है, तो आपने स्लोली लाइन फॉरवर्ड शुरू करेंगे और आपने देखा कि वो अपोनेंट पैरी कर रहा है, सडनली द सेम लाइन यू हैव टू चेंज एंड मेक अ हिट, दैट कॉल्ड अ चेंज कट। जैसे हम लोग स्टार्ट, यू हैव टू ट्रैवल लाइक दिस, यू हैव टू स्टार्ट विद द गार्ड फर्स्ट, स्लोली फॉरवर्ड एंड यू सी द parry and you change the action, change the line and make hit on the flank. That's called the change cut. So I will show you in a proper way how to make it. चेंज कट्स में बेसिकली ये होता है कि दैट इज आल्सो सिंपल अटैक, बट इस एक्शन में हम लोग ये करते हैं वो एक ही फेंसिंग टाइम में हम उसको परफॉर्म करते हैं। इसमें जिस लाइन में हम हाथ स्लोली प्रोग्रेसिवली फॉरवर्ड करते हैं, वो हाथ वैसे ही फॉरवर्ड करते हुए हम लोग लाइन को चेंज करते हैं। इसमें हम स्टॉप करके या हम लोग हैंड पुल करके एक्शन नहीं करते। अगर इसमें एक्शन में हम अगर हाथ पुल करते हो हाथ स्टार्ट करने के बाद, तो दैट विल बी काउंट एज अटैक नो, करेक्ट, या अटैक नो, क्योंकि हाथ पुलिंग साइबर में अलाउड नहीं है। जैसे कोई भी एक्शन है फ्रंट एक्शन, जैसे कंपाउंड अटैक में भी अगर फ्रंट हो या कुछ भी हो, किसी भी एक्शन में अगर हाथ हम लोग एक बार शुरू करने के बाद फिर अगर वापस खींच के फिर हिट करेंगे, तो वो कोई भी एक्शन काउंट नहीं होगा एज अ वैलिड अटैक करके। How to make a cut from the flank to chest. हम flank पे शुरू करेंगे और on the way जैसे हम पैरी देखते हैं, we will change the line and we'll make a cut on the chest. This is another line, means अलग अलग लाइन में हम एक्शन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, व्हाट इज द राइट वे टू ट्रैवल द ब्लेड, वो इसमें मैंने दिखाने की कोशिश करी। आई एम नॉट दैट गुड फेंसर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द प्रॉपर पाथ हाउ टू मेक द एक्शन। The opponent will open the line. When you see the line open on the flank, you will start forward like this, and so on the way you will see that opponent is making parry. So opponent के blade के नीचे से लेके you have to make a cut on the chest. It will start like up, forward, then up, forward. So complete action आपको मैं step forward में करके दिखाऊंगा कैसे होता है। सो ये जो एक्शन था वो बेसिकली चेंज करता है हमारा
इसके बाद परफॉर्म किया हुआ है। जैसे हमने चेस्ट पे पहले फ्लांग पे शुरू किया, उसके बाद हमने उसको कंटिन्यू लेके गए चेस्ट के ऊपर। वैसे ही आप लोग सेम वे में जब आप उसको एक्शन को परफॉर्म करोगे तो द सेम वे यू कैन स्टार्ट विद द स्टार्ट ऑन द चेस्ट एंड स्लोली सेम वे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो यू कैन अंडरपास द आर्म एंड मेक अ कट ऑन द फ्लांग। तो दोनों तरीके सेम ही है। जब भी आप स्टेप में या लॉन्च में या स्टेप लॉन्च में एक्शन शुरू करोगे तो हमेशा याद रखिए इट शुड स्टार्ट विद द वेपन फर्स्ट। हमने वेपन उस वैलिड टारगेट पे ओपन करना है जहां पे हमने ऑलरेडी आपको जो वैलिड टारगेट ओपन दिख रहा है, और उसमें हम हिट करते हुए अगर आप देखते हो कि अपोनेंट पैरी कर रहा है तो उस टाइम पे आपने चेंज करके वो दूसरे जगह पे आपने हिट करना है। दैट्स कॉल्ड चेंज कट। तो ये बेसिकली कुछ एक्शंस थी जो आपको मैंने सिंपल अटैक में दिखाई है। तो अब कुछ एक्शंस है जो हम लोग कंपाउंड एक्शन में दिखाएंगे आपको। देयर आर मेनी एक्शन इन द कंपाउंड अटैक। साइबर में बेसिकली कंपाउंड अटैक्स ही है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो जैसे हम कंपाउंड अटैक्स अभी देखेंगे, तो कंपाउंड अटैक में पहला एक्शन होता है फेंट का। जैसे हम एक जगह पे अटैक को शो करेंगे और दूसरी जगह पे हम उसको वैलिड टारगेट पे हिट करेंगे। तो एक एक्शन होता है जो फेंट के ट्रैवल करने का तरीका कैसे होता है, वो एक ट्रैवल करने का जो बेसिक्स है उसके फेंट के, वो कैसे शुरू होता है, वो आपको मैं एक छोटे से वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, पहले भी दिखाया था कि चेस्ट में हम दिखाएंगे। जैसे हम वेपन यहाँ पे क्या किया, उन्होंने चेस्ट में जाके स्टॉप किया एक्शन को। दैट्स कॉल्ड कंपाउंड अटैक। इन दिस एक्शन दे हैव यूज्ड टू फेंसिंग टाइम। एक जगह पे हमने स्टॉप किया, अपन उनको प्रोवोक किया कि वो पैरी करे, और उसके बाद हमने जैसे हम उसकी पैरी देखी, हमने डिसएंगेज करके दूसरी जगह पे हिट किया। तो ये अलग अलग जगह से हिट करने के हम ट्रैवल करने का वे है। जैसे एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक हम कैसे ट्रैवल करें, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू ट्रैवल। तो वो इस एक्शन इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई। एक्शन में बोला गया कि जब भी आप फेंट करते हो तो कभी भी आपने ब्लेड का फेस ओपन नहीं करना चाहिए। जैसे ब्लेड का पॉइंट है वो आगे कभी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो उसमें होता क्या है कि जैसे आप ब्लेड का पॉइंट आगे रखोगे और फिर डिसएंगेज करने की कोशिश करोगे तो ब्लेड में अपोनेंट के पैरी में फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे इसलिए आप जब भी फेंट करते हो तो आपका ब्लेड स्ट्रेट लाइन में ओपन होना चाहिए, ना कि फॉरवर्ड पोजिशन में। One single hop, yes, but it must be very small and not yes. इसमें कोच वही दिखा रहा है कि कोई भी एक्शन हम एक बार शुरू करने के बाद हम हैंड पुल करके फिर एक्शन उसको फिनिश नहीं करते। अगर हम हैंड पुल करके इस एक्शन को फिनिश करेंगे तो दैट वोंट बी कंसीडर्ड एज अटैक, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अटैक फ्रॉम योर नो। Yes. More and less not visible and very slowly. Yes. It will be the same when we will start with the face to the flank. Execution. I make the face to the flank. Take that. Yes, okay. When the person is off, for example, इसमें दिखाया गया कि आप दोनों तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। इसमें जैसे डिस्टेंस आपको लगता है कि ज्यादा है तो यू कैन अंडरपास द आर्म एंड मेक ए हिट। जैसे क्लोज डिस्टेंस में आपको हाथ के नीचे से डिसएंगेज करना,
मुश्किल होता है, तो ऐसे टाइम में आप लोग अबव ब्लेड आप उसको निकाल के फिर आप उसको हिट करोगे। सो ये अलग अलग तरीके हैं जो हम लोग खेलने के टाइम पे यूज करेंगे उसको, कि जो आप दोनों तरीके से फेंट डिसएंगेज कर सकते हो, उसके हाथ के नीचे से भी कर सकते हो और हाथ के ऊपर से भी कर सकते हो। Yes, I make the face. I take the point blank only, not all the hand or the brain. Yes, so, yes. आपने अब इसमें आपने देखा कि जैसे हम लोग कोई भी एक्शन शुरू कर रहे थे, जैसे पेंट सिखा रहे कुछ भी कर रहे, तो हमेशा जब भी हम उसको हाथ को फॉरवर्डली ओपन करते हैं तो हिट करने के टाइम पे हम उसमें से हाथ के कंप्लीट वेपन को कभी पीछे नहीं खींचना चाहिए। वी हैव टू पुल दिस, इसका पॉइंट जो होता है वेपन का उसको पीछे खींच के फिर हमें उसको हिट करना है। दैट काउंट अ वैलिड अटैक। अगर आप वही एक्शन करने के टाइम, फेंट एक्शन करने के टाइम पे, अगर हम उसको स्टार्ट करने के टाइम पे हमने स्टार्ट किया फॉरवर्ड, जैसे हमने ये एक्शन शुरू किया, उसके बाद अगर मैं यहाँ से उसका पॉइंट पीछे खींच के अगर हिट करता हूँ तो वैलिड एक्शन। और वही एक्शन के टाइम पे अगर मैंने एक्शन शुरू किया फिर उसको मैंने हाथ पीछे खींच के अगर चेन लाइट चेंज करके मारा तो वो वैलिड एक्शन काउंट नहीं होगा, क्योंकि साइबर में आर्म पुलिंग अलाउड नहीं है। आपको एक ही बार आप हाथ को ओपन कर सकते हो। अगर एक बार हाथ ओपन करने के बाद अगर आप पुल करते हो हैंड को, तो दैट विल नॉट काउंट एज अटैक, प्रॉपर वैलिड अटैक। सो द नेक्स्ट एक्शन वी विल सी इट्स अ कंपाउंड अटैक। चेस्ट के ऊपर फेंट करके हम उसको फ्लैंक के ऊपर हिट करेंगे। इसमें आपने देखा कि ब्लेड साइड वेज में ओपन है, उसके टारगेट के ऊपर सीधा ब्लेड हम कभी ओपन नहीं करते। अगर हम सीधा ब्लेड ओपन करेंगे तो हमारा ब्लेड फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए साइड वेज में हमने उस टारगेट के ऊपर हिट करने के जैसे हमने दिखाना है, हमने सिर्फ ब्लेड को ओपन करना है, लाइन ओपन करनी है उसकी। देन once we see that opponent is making parry, we have to change the line. Why are we going under? Under. Under is better than over. सेम वे मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि हम पहले सिखाने के टाइम पे पहले खड़े होकर हिट करवा के फिर लॉन्च करते हैं, स्लोली वी विल प्रोग्रेस। साइबर का एक बेसिक है, जब भी आप हिट करते हो तो कभी भी 100% आपका हाथ ऐसे स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। A little bit you have to keep it folded when you make a hit. कभी भी ऐसे कंप्लीट हैंड ओपन नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरा हाथ ओपन करते हो तो आपको नेक्स्ट एक्शन करने के लिए आगे, जैसे हमारे को एक्शन हमने अटैक कंप्लीट किया पर हमारे को वापस पैरी के लिए आना है, कोई भी एक्शन आना है, तो उसके लिए हमारे को प्रॉब्लम होता है। इसलिए कोई भी एक्शन करने के टाइम पे कभी भी हाथ को कंप्लीटली एक्शन नहीं करना है। जैसे कोई भी हिट कर रहे हैं, लिटिल बिट, एक छोटा सा, एक आप बोलो कि 5% उसको फोल्ड रहना चाहिए, 100% कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। 95% ओपन करो, छोटा सा फोल्ड उसमें होना चाहिए। एक्शन है जैसे हमने स्टेप 1 में स्टार्ट किया है, हम इसमें अभी देखोगे स्टेप 1 में हमने पहले सबसे पहले स्टार्ट विद द हैंड फर्स्ट। जैसे हमने टारगेट ओपन करना है पहले, देन वी हैव टू फॉलो दिस स्टेप। जैसे हमने पहले देखते फिर लाइन चेंज कर दिया।
यहाँ पे इसमें देखा कि एक्शन में हमने कैसे शुरू करना है। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि यू हैव टू ऑलवेज, कोई भी एक्शन जब हम शुरू करते हैं तो स्टार्ट विद द हैंड। इस टारगेट के आपको जो ओपन टारगेट दिखता है आपको, उसके ऊपर आप एक्शन को शुरू करोगे। जैसे आप प्रोग्रेस करते हो एक्शन, अगर आप देखते हो कि अपोनेंट पैरी कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग उसको प्रोवोक करने की कोशिश करना है। अगर हमने देखा कि वो प्रोवोक हो रहा है और पैरी कर रहा है तो उस टाइम पे हमने लाइन चेंज करके दूसरी जगह पे हिट करना है। सेम टाइम अगर ये भी हमने टेम्पो याद रखना है कि हम कोशिश जब भी हम शुरू सिखाने के टाइम पे तो हम कंटिन्यू सिखाएंगे, पर जब आप रेगुलर प्रैक्टिस देते हो या प्रैक्टिस करते हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम लाइन ओपन करके वहां उस टारगेट पे हिट करना शुरू करें। कभी कभी सडन ही हमने पैरी देना है, हर बार पैरी नहीं करवाना है, तो उससे उसका हैबिट होता है कि वो एक्शन को देख के रिएक्ट करना शुरू करें। जब भी हम डिसएंगेजमेंट करते हैं तो हमेशा हमने अपोनेंट का पैरी देख के उसके बाद डिसएंगेज करना शुरू करना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होता है, हम काउंटर एक्शन की जैसे रोबोटिक एक्शन की जैसे एक्शन करना शुरू करते हैं। हम लोग नहीं देखते कि अपोनेंट क्या कर रहा है, या पैरी कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा हाथ ओपन करते हैं। हमने पहले से डिसाइड करके रखा होता है माइंड में कि नहीं, मैंने डिसएंगेज करके मारना है। तो होता क्या है, अपोनेंट को आपका फेंट कभी कभी फील नहीं होता और वो वैसे ही स्टक होके खड़ा होता है और हम जाके उसके पैरी पे ऊपर ब्लेड के ऊपर मार देते हैं, तो इससे वो एक्शन कंप्लीट नहीं होता प्रॉपर्ली। तो हम जब भी एक्शन शुरू करते हैं, फेंट का कोई भी एक्शन शुरू करते हैं, तो हम हमेशा हम कंप्लीट माइंड लेके, ये 100% दिमाग में लेके नहीं चलना चाहिए कि मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा दूसरी जगह पे मारूंगा। आपने देखना है कि वो जो आप फेंट कर रहे हो वो फेंट कितना इफेक्टिव, वो अपोनेंट को फील हो रहा है क्या। अगर अपोनेंट उसके ऊपर पैरी करके रिएक्ट कर रहा है ऐसे आपको लगता है, तभी आपने वो लाइन चेंज करके हिट करनी है। तो प्री डिसाइडेड एक्शन कभी नहीं करना चाहिए। तो अगला एक्शन हम लोग देखेंगे अभी, फ्रेम कट, जो हमने पहले इसमें इसमें भी मैंने देखा ये बेसिक एक्सट्रैक्शंस हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हिट करके फिर स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं। वो एक तरीका है सिखाने का हाथ जल्दी खोलने के लिए। एक्चुअल बाउट में ये धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे, पर ये एक बेसिक है जिसमें हम क्या करते हैं, फेंट करके हिट करते हैं और उसके बाद एक्शन में आपने देखा कि आपने कैसे एक्शन को स्टार्ट करना है। सेम वे है, एक्शन है जो हमने पहले फ्लांग के ऊपर उसको फेंट किया, जैसे ये देखा कि हमने पैरी होती है तो हमने चेंज करके मास के ऊपर कर दिया। अब सेम वे में हम लोग उसको दूसरी तरीके से, दूसरा एक फेंट एक्शन है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। हेड को फ्लांग को हमने पहले भी एक्शन क्या करना है, हमने वन टू एक्शन करना है। हमने हिट उसको करवाना है कि पहले हिट्स मास के ऊपर करवाना है, फिर अगली बार उसको मास के ऊपर फेंट करवा के फिर साइड में कट करवाना है। ये तो इसमें आपने ये एक्शंस को देखा अभी। अनदर वन वेरिएशन आई विल शो यू। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जैसे सागर को साहब एक मिनट, सागर को साहब एक मिनट। All participants, you are requested to please write your questions on the chat. मैं उनको नोट कर रहा हूँ। हम उनके बाद रिप्लाई करवाएंगे अपने सागर से और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट। ये कुछ एक लोग हैं, उमा शंकर, श्री, ये सारे लेटे हुए हैं बेड पे। यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट अप एंड एक्ट प्रॉपरली। मैं नोट कर रहा हूं, आई विल क्लिक दीज फोटोज एंड मेक देम वायरल। प्लीज बिहेव प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच। सागर, यू कैन कंटिन्यू ब्रदर। थैंक यू।
ओके, जैसे कुछ और भी वेरिएशन है, मैंने आपको वही फ्रेंड के टाइम पे बताया कि हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज क्रिएट करते हैं एक्शन सिखाने के लिए, कि उनका राइट ऑफ टाइम को डेवलप हो, उनको समझ में है कि पेंट एक एक्शन, कंपाउंड एक्शन ऐसे एक्शन है जिसमें हमने अपोनेंट का रिएक्शन भी देखना जरूरी है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किस वे में रिएक्ट करते हैं, कि हर एक्शन के ऊपर हर अपोनेंट एक जैसे रिएक्ट नहीं, हर कोई अपोनेंट एक जैसे, अलग अलग अपोनेंट्स का अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने का तरीका होता है। So we have to say the reaction and then we have to change our action. So मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्शंस दिखाऊं। अभी जो नेक्स्ट है वो फ्लैंक और अंडर आर्म है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम चेस्ट इसके साथ भी हम आर्म के अपर आर्म और अंडर आर्म हम दोनों जगह पे कट करवाते हैं। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग अंडर आर्म फेंट करके फ्लैंक के ऊपर फेंट दिखा के अंडर आर्म कट करने के लिए उसमें सिखाया गया है। तो इसमें ऐसा एक्शन में हमने दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग पेंट सब तो आप ये जितने सारे वेरिएशन आप क्रिएट करना चाहो उतने सारे वेरिएशन आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने अभी दिखाया कि आपने साइड पे पेंट करवा के अंडर आर्म भी कट कर सकते हैं, या साइड पे पेंट करवा के आप प्रेस करके साथ भी फिट कर सकते हो। तो इसमें हर किसी में यही ध्यान रखना है कि पहले फेंट आपने जब करते हो तो कभी भी लाइन कंप्लीट पॉइंट कंप्लीट ओपन मत करो, साइड में रखो। जैसे आपको अपन का रिएक्शन दिखेगा तो उसके बाद एक्शन को चेंज करो। सो नेक्स्ट एक्शन we'll see now here, पेंट फ्लैंक पे करके डिसएंगेजमेंट प्रेस करना। मैं आपको दिखाया था पहले भी वैसे। जब आप फेंट करते हो तो वो फेंट ऐसे इफेक्टिवली होना चाहिए कि वो अपोनेंट को फील होना चाहिए कि उस एरिया में वो एक्चुअली अपन हम लोग हिट करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए अगर ब्लेड ओपन करते हैं और उसमें कोई फील नहीं होगा रियल एक्शन वाला, तो अपोनेंट उसके ऊपर कभी रिएक्ट नहीं करेगा। आप जब भी एक्शंस करते हो तो हमेशा रखो कि फेंट करने के टाइम पे जो हमारा हाथ करने का स्पीड है, जो हाथ हम रेगुलर हिट करने का तरीका है, उसी तरीके से हमने जाके सडनली जाके फिर उसको स्टॉप करना चाहिए। उससे होता क्या है कि अपोनेंट को फील आता है कि वहां पे वो अटैक हो रहा है, तो पैरी के लिए रिएक्ट करेगा। तो अगर हम सिंपली ऐसे मरा हुआ ब्लेड ओपन करेंगे फिर डिसएंगेज करके हिट करेंगे, तो दैट विल बी मैकेनिकल एक्शन, बट एक्चुअल बाउट में वो काम नहीं आएगा, क्योंकि अपोनेंट उसको कभी फील नहीं करेगा कि वो अटैक वहां पे आ रहा है।
The same, जब whenever we are making a step launch, you have to start with the hand first. जब भी आप स्टेप लॉन्च परफॉर्म करते हो तो हमेशा हाथ से पहले शुरू कीजिए, जैसे आप अपोनेंट की पैरी देखोगे उसके बाद इसको चेंज करना है. दैट इज द कंप्लीट एक्शन नाउ. तो इसके बाद कुछ लाइन फ्रंट है, और भी कुछ एक्शंस है जो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा. ये कंपाउंड फेंट है, जैसे इसमें ये एक या दो से ज्यादा फेंट करके फिर हम हिट करते हैं. वन फर्स्ट फेंट ऑन द मास्क, देन हम लोग चेंज करेंगे फ्लांग के ऊपर एंड अगेन मास्क के ऊपर. इस एक्शन में क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करें, हम एक साथ हाथ को ओपन नहीं करना चाहिए. पहले छोटा हाथ ओपन करो, एक फेंट करो, सेकंड फेंट में दूसरा थोड़ा सा हाथ ओपन करो, और फिर लास्ट एक्शन में हमने पूरा हाथ ओपन करना. तो जब भी फेंट करते हो तो हमेशा वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ना कि पॉज 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 नहीं होना चाहिए. 1 2 3 में एक्शन कंप्लीट होना चाहिए. वही मैंने जैसे आपको बोला कि हैंड वाइडली कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे हो प्रोसेसिवली फॉरवर्ड एक्शन होना चाहिए. अगर हम हाथ पीछे कुछ के उसको मूव करते हो तो वो अटैक काउंट नहीं होगा, अटैक मूव करके. ये स्टेप फॉरवर्ड करने के टाइम, जैसे बोला मैंने आपको, एक्शन कंप्लीट करके हिट करके फिर स्टेप फॉरवर्ड करना है. ये बेसिक है सिखाने का. यू कैन चेंज इट विद एडवांस फेंसर, पर जब भी नया फेंसर को आप सिखाते हो तो ऐसे ही सिखाना चाहिए हमें. इसलिए उसको पहले हाथ खोलने का हैबिट पड़ता है. सेम वे लॉन्च, you have to make a hit first and then you have to perform the launch. ये स्टेप लॉन्च में एक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कंपाउंड एक्शन जब हम स्टेप लॉन्च में परफॉर्म करते हैं तो उसको कैसे परफॉर्म करना है वो आपको दिखा रहा है. यू हैव टू स्टार्ट विद द हैंड, सेकंड फेंट आप स्टेप में करोगे और थर्ड फेंट करके, थर्ड हिट करके फिर आप लॉन्च ओपन करोगे. ये गलत एक्शन है, आपको दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर आप ओपन करके आप कंप्लीट स्टेप फॉरवर्ड करते हो तो आपको अगले दो स्टेप लॉन्च में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, जो कि पॉसिबल नहीं है कंटिन्यू फास्ट मूवमेंट में. इसलिए जब भी आप एक्शन शुरू करते हो तो हाथ से शुरू करो, फेंट अगली स्टेप में आएगा, फिर हिट के बाद लॉन्च होगा.
The feint should be effective, not like a slow motion. मैंने जैसे पहले आपको पिछली बार बताया था. जब आप फेंट करते हो तब कभी भी पूरी तरीके से हाथ को ओपन नहीं करना चाहिए. सो ये एक्शन था जो कंपाउंड पेंट बोलते हैं उसको, जिसमें हम एक या एक से ज्यादा पेंट यूज कर, दो पेंट यूज करके उसके बाद हिट करते हैं. सेबर में बेसिकली मैक्सिमम आप दो पेंट ही यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा पेंट यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपको सेबर में नहीं मिलता है कि आप उससे ज्यादा पेंट यूज करो और हिट करो. तो अगला जो एक्शन है वो हम लोग देखेंगे अभी. दैट विल बी अ क्वाड बीट, जो बीट हिट के एक्शन से थोड़े, वो आपको थोड़े बीट हिट के एक्शन दिखाता हूँ मैं. दैट आल्सो कंपाउंड एक्शन, इसमें दो से ज्यादा फेंसिंग टाइम यूज होते हैं. सो ये बीट की एक्सरसाइज है. बीट का हैंड मूवमेंट कैसे परफेक्टली आना चाहिए. जब भी हम बीट करते हो तो मैक्सिमम प्रेफर करते हैं कि बीट हमेशा ब्लेड के मिडिल पार्ट पे हो, जिससे उसको अच्छा फील है अपन कि वो अटैक हमारे ऊपर आ रहा है. बीट हिट के एक्शन में सबसे बड़ा बेसिक ये है कि जैसे आप ब्लेड को टच करते हो तो कंटिन्यू आपका हाथ आगे होना चाहिए. बहुत लोग जैसे बीट हिट हम लोग सिखाते हैं, हम लोगों में ये प्रॉब्लम होता है कि बीट हम ऐसे सिखाते हैं 1 and 2, ये दो अलग अलग एक्शन हम लोग सिखाते हैं सिखाने के टाइम. और वो एक्शन ना हो कि ये कंटिन्यू एक्शन में आना चाहिए बीट जो भी हो, जिससे मीन्स आप क्वाड बीट कर रहे हो, टीएस कर रहे हो, सेकंड बीट कर रहे हो, जो भी बीट कर रहे हो उसमें उसका प्रोसीजर वही होगा, हाथ कोई पुल नहीं होगा. मैंने ऐसे बताया आपको, हाथ पुल नहीं होना चाहिए. अगर हमने हाथ थोड़ा सा भी पुल करते तो हम अपोनेंट को गैप देते कि वो अपना पैर ही उसके अंदर लॉक करवाए. अगर थोड़ा सा भी हैंड पुल होता है तो उससे अपोनेंट आपका पैर ही, आपका बीट हिट ब्लॉक करवा सकते हैं. तो हमेशा याद रखो कि जब भी बीट हिट आप करते हो तो आपका हाथ कंटिन्यूसली पुल होना. The same action will be the launch. You have to make a beat hit and then followed by the launch.
अभी हमने इसमें देखा बीट हिट में, मैंने आपको जैसे ही बोला कि बीट हिट ये एक्शन ऐसा है जो एक, भले ही वो कंपाउंड एक्शन है, पर वी हैव टू मेक इट, ट्राई टू फिनिश इट विद इन वन एक्शन। मींस उसमें दो एक्शन अलग अलग फील नहीं होने चाहिए। जब भी आप बीट हिट करते हो तो हमने हमेशा याद रखना है कि हमने फॉरवर्ड बीट करते हुए कंटिन्यू फॉरवर्ड हाथ ओपन होना चाहिए। उसके बीच में बीट करके हाथ ऊपर उठा के फिर ऐसे हिट नहीं करता। हम लोग बेसिकली एक्शन को ऐसे सिखाते हैं कि वन बीट एंड हिट, बीट एंड हिट। इसमें होता क्या है, बीट के बाद अपन, हमारा जो बच्चा है वो हाथ खींच के फिर दूसरा हिट करता है। सो हम लोग कोशिश करना चाहिए जब भी हम उसको सिखाते हैं तो हमेशा एक्शन ऐसे निकलनी चाहिए बीट हिट की, पम पम एक घंटे, जैसे ब्लेड के ऊपर टच होगा वहीं से एक्शन फॉरवर्ड ओपन होगा, उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अब बीट हिट में बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप सेकंड बीट है, क्वाड बीट है, फिर टीएस बीट है, बहुत सारे तरीके हैं। अब सारी चीजें हम एक घंटे की क्लास में नहीं दिखा पाएंगे आपको, पर फिर भी बीट में हमेशा एक अलग अलग वेरिएशन होती है। जैसे हमने बीट हिट अगर कंटिन्यूअसली सिंपल अटैक के तरीके से फिनिश करना है, डायरेक्ट बीट हिट ही फिनिश करना है, तो मैं हमेशा याद रखें कि स्टेप लॉन्च में जब हम परफॉर्म करते हैं तो स्टेप लॉन्च के टाइम पे हम लोगों ने हाथ ओपन करके स्टेप फॉरवर्ड आने तक कोई एक्शन नहीं करना ब्लेड के ऊपर, क्योंकि हमारे को डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करना है। अगर पहले बीट करके फिर हम स्टेप लॉन्च करेंगे तो हमारे को कभी डायरेक्ट एक्शन नहीं मिलेगा। तो हमने जब भी बीट हिट डायरेक्ट परफॉर्म करना है तो हमेशा याद रखें कि हम जैसे रेगुलर अटैक मास्क पे ओपन करने के लिए ओपन करते हैं, वैसे हमने हाथ शुरू करना है फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड करने के बाद फिर ब्लेड के ऊपर बीट करके हिट करना है हमने लास्ट फाइनल एक्शन में लॉन्च में। वैसे अगर आपको बीट के साथ कोई कॉम्बिनेशन करना है, मींस बीट फेंट करवाना है, या बीट डिसएंगेजमेंट हिट करना है, या बीट 1-2 करवाना है, वो भी एक्शन ऐसे करवानी होगी। इस एक्शन में आप क्या करोगे कि अपोनेंट के, जैसे हम लेग स्टार्ट करते हैं पहले, तो वो स्टार्टिंग लेग के ऊपर हम अपोनेंट के बेल्ट के ऊपर बीट करेंगे। उससे क्या होगा कि अपोनेंट का रिएक्शन करने के लिए अपोनेंट को टाइम मिलेगा और हमारे को चेंज करने के लिए टाइम मिलेगा। तो जब डायरेक्ट करते हो तो हम स्टेप लॉन्च में स्टेप में कोई एक्शन नहीं करते, हाथ ओपन करके स्टेप फॉरवर्ड आके फिर लास्ट मिनट में बीट हिट करते हैं। इसके अपोजिट हम जब इनडायरेक्ट या कोई हम लोग ज्यादा फेंट यूज करते हैं, या बीट फेंट डिसएंगेजमेंट है, या बीट डिसएंगेजमेंट हो गया, जो भी है, ऐसे जो भी एक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें हमेशा याद रखिए कि हमारा एक्शन हमेशा बीट पहले स्टार्ट होगा ब्लेड के ऊपर, उसके बाद हमारा स्टेप स्टार्ट होगा जहां पे हम फेंट होगा या डिसएंगेजमेंट होगा जो करेंगे, उसके बाद हिट करके हमने लॉन्च फिनिश करना है। कुछ इंटरेस्टिंग एक्शंस भी है साइबर में बीट्स की, वो भी आपको मैं कुछ दिखाऊंगा। पहले हम सेकंड बीट हिट कैसे वो देखते हैं। ये सेकंड बीट हिट है, पूरी एक्शन तो आपको मैं दिखा नहीं सकता। वैसे आप टीएफ में भी बीट हिट कर सकते हो। सागर को साहब, सॉरी इंटरप्टिंग सागर जी, all have to answer questions also. Thank you. एक इंटरेस्टिंग एक्शन है, जैसे मैंने बोला आपको प्राइम के ऊपर, लाइन के ऊपर भी हम बीट हिट कर सकते हैं। तो रिवर्स हम उसके ऊपर बीट करके प्राइम बीट करके हिट करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम पहले लाइन देते हैं, उसके बाद अपोनेंट हमारा ब्लेड कैच करने की कोशिश करता है, वो कैच किया ब्लेड के ऊपर, फिर रिवर्स हम लोग प्राइम में बीट करके हिट करते हैं। कंपाउंड एक्शन। दिस वाज वन ऑफ द बीट एक्शंस। कुछ प्रेशर हिट्स है जो हम लोग यूज करते हैं। प्रेशर मींस एक्चुअली प्रेशर नहीं, वो एक एडवांस स्लाइडिंग एक्शंस है।
तो बेसिक है, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको क्वाड प्रेशर हिट बोलते हैं, पर एक्चुअली हम इसमें ब्लेड को सिर्फ फॉरवर्ड जाके टच करके उसको ब्लॉक करवा के फिर हिट करते हैं। इसमें कोई भी ब्लेड को प्रेस नहीं करता, सिर्फ वी हैव टू एंगेज विद द ब्लेड बाय एक्सटेंडिंग स्लाइड फॉरवर्ड हैंड। इस सेक्शन में बेसिकली ब्लेड के ऊपर हमने ब्लेड को स्लाइड नहीं करवाना होगा, सिर्फ जाके एंगेज करना उसको स्लाइड टच के साथ। इसमें याद रखो कि हाथ पहले हमने शुरू करना है। अगर हाथ पहले शुरू नहीं करेगा तो हमारा एक्शन नहीं मिलेगा हमारे को। वी हैव टू एंगेज फर्स्ट एंड देन वी हैव टू गो स्टेप फॉरवर्ड। Agar course of another 2 minutes, please. We have a lot of questions. Okay, this is the main actions. The same action we can use in the second. Same action we can use in the second. मैं एक छोटा सा दिखाता हूँ आपको सैंपल। ये सेकंड का एक्शन है। सेम वे वी कैन यूज इट इन द टीएस प्रेशर एज वेल। Okay, that is the basic actions what we have seen. We have lot more actions in the server. जो सारे एक्शन हम दिखा नहीं सकते, पर कुछ बेसिक एक्शंस है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। So rest of Vikram, you can start now. A questionnaire we can start. You have to unmute Vikram. आवाज नहीं आ रही आपकी। Thank you. Okay. Sagar, thank you very much. It was such a wonderful lesson with lot of teaching aids and lot of explanation. आप सबको ये जानकर आपने देखा होगा कि कितना एफर्ट लगाया गया है इसमें, एंड ही हैज लिटरली खुद वीडियो बनाए हैं एंड उसको आपको सभी को दिखाया है। अभी कुछ है क्वेश्चंस वी विल स्ट्रेट अवे हिट। हमारे पास टाइम कम है, हम ऑलरेडी ओवरशूट कर चुके हैं टाइम।
कुछ एक क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी उसमें डाल दिए हैं, आंसर्स आपकी चैट बॉक्स में, यू कैन सी इट। एक हमारे बड़े मेधावी और बड़े अच्छे कोच और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं नेपाल के, इनका नाम है संतोष पांडे जी। इन्होंने एक बड़ा अच्छा सा टर्मिनोलॉजी डाला है कि व्हाट इज पास्ता पसाटा डी सोटो। इनफैक्ट मुझे भी ये पता नहीं था पसाटा डी सोटो, तो मैं सागर को बोलूंगा, फिर मैंने इसको गूगल किया। आई थिंक इट इज एन इटालियन वर्ड रिलेटेड टू फेंसिंग। सागर, विद इन 20 सेकेंड्स इफ यू कैन एक्सप्लेन इट। पसाटा डी सोटो एक बेसिकली एक्शन है जो रेन्यूड अटैक में काउंट होती है। तो उसमें आप बेसिकली नीचे बैठ के डिग करके आप अपोनेंट के टारगेट के ऊपर हिट करते हो। दैट्स कॉल्ड पसाटा डी सोटो। डिगिंग और टचिंग द आर्म फॉरवर्ड, लॉन्च करके आप हाथ फॉरवर्ड टच करके आप हिट करते हो, जो पुराने जमाने में ज्यादा यूज होता था। आजकल भी फॉइल साइबर में बेसिकली एज अ टैक्टिक्स करके बच्चे ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को। पर दैट इज वन काइंड ऑफ फुटवर्क एक्शन, दैट्स कॉल्ड यू हैव टू मेक अ डिग डाउन एंड देन यू हैव टू मेक अ ट्राई टू मेक। ओके, बेसिकली व्हाट सागर इज ट्राइंग टू से, जो मैंने गूगल पे सर्च किया है, बेसिकली टू गेन एडवांटेज ऑफ बॉडी बैलेंस, ताकि आप ऑफ बैलेंस ना हो जाओ इफ यू रीच इट। पांडे जी, वैसे वो साइबर में अगर आज की डेट में अगर आप उसको टच करेंगे ग्राउंड पे तो हॉल्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपको येलो कार्ड भी मिलेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज सागर, अली ने एक क्वेश्चन पूछा है कि it's a very basic question but I still want you to answer that. How to do all cuts with a left-handed fencer? The It is same the same way, technique or you use do something? बेसिकली लेफ्ट हैंडेड फेंसर और राइट हैंडेड फेंसर के साथ साइबर में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। जो कट आपको फ्लैंक पे आप उसको ओपन करो टारगेट, वो सेम टारगेट आप लोग लेफ्ट हैंडर के लिए उसी तरीके से आप उसको ओपन करोगे टीयर कट के लिए। जैसे आपने जैसे चेस्ट कट के लिए ओपन करते हो, वो सेम वे में उसको अपोजिट वे में उसको फ्लैंक कट के लिए ओपन करोगे। जब अच्छा सागर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं भी इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता था आपसे। पॉइंट इन मोस्टली फेंसर्स में लिखा है कि जो पॉइंट इन लाइन है वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्या ड्रिल्स करें ट्रेनिंग में और क्या प्रैक्टिस करें कि उनमें परफेक्शन आ जाए? इफ यू कैन इलेबोरेट थोड़ा डिटेल में इसमें 1 मिनट के अंदर। देन रशीद, आई एम कमिंग टू यू फॉर वन क्वेश्चन। बेसिकली पॉइंट इन लाइन के बारे में बहुत ज्यादा गलत कंसेप्ट है कि वो प्रॉपर डिस्टेंस के साथ रखना चाहिए या करना चाहिए। एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं। जैसे आप एक्शन खत्म करते हो और अपोनेंट की एक्शन स्टार्ट होने से पहले अगर आप लाइन पॉइंट इन लाइन अपोनेंट के टारगेट के ऊपर वैलिड टारगेट के ऊपर रखते हो तो दैट लाइन काउंट एज अ लाइन। उसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस होना है या लंबा स्टेप लॉन्ग डिस्टेंस होना, ये सारे जरूरत नहीं है। पॉइंट इन लाइन हमेशा शुरू होनी चाहिए जब अपोनेंट अटैक स्टार्ट करे। एक बार अटैक में अगर अपोनेंट ने अटैक स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर हम लाइन रखते हैं तो वो लाइन वैलिड नहीं काउंट होगी। बेसिकली इसके बारे में बहुत ज्यादा गलत कंसेप्ट कि लाइन रखे डिस्टेंस होगा तो ही लाइन काउंट होगी या डिस्टेंस कम होगा तो लाइन काउंट होगी। ऐसे कुछ नहीं है। जैसे मैंने अटैक खत्म किया, पर एक फेंसिंग टाइम के अपोनेंट के पास टाइम होता है कि जिसमें वो अटैक स्टार्ट करे। अगर वो एक फेंसिंग टाइम में अटैक स्टार्ट करेगा तो लाइन वैलिड काउंट नहीं होगी। अगर एक फेंसिंग टाइम से ज्यादा टाइम वो लेता है और हमने लाइन रखे, अगर हम पीछे आ गए तो वो लाइन भी लाइन वैलिड करके ही काउंट होगी, भले वो शॉर्ट डिस्टेंस होगा। तो जैसे कुछ ड्रिल्स होती है जो लाइन रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल से इस सेशन में थोड़ा सा पॉइंट इन लाइन के ऊपर भी आपको कुछ वीडियो दिखा सकूंगा। थैंक यू वेरी मच रशीद। मैं आपको लोकेट नहीं कर पा रहा हूं इस पे बिकॉज ये रेफरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सागर जी, अगर आप ये कृष्ण, अगर आप इसको रशीद को म्यूट अनम्यूट करें लोकेट करके प्लीज। ये रेफरी रिलेटेड क्वेश्चन था और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशीद, आर यू देयर? Rashid, he's a referee, international referee of Saber, so there's nobody who will be able to answer this better. Yes, I am hearing, Colonel. Please carry on. Yes, Rashid. Yes, Colonel, I am hearing. Rashid भाई बोलिए। Hi, Sagar, how are you? Good, fine. आप कैसे हो? Yeah, I am good. हाँ, रशीद जी, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने। हाउ टू ब्रेक द टाइमिंग डिस्टेंस इन अटैक? एज ए रेफरी आप उसका क्या जवाब देते हैं? टाइमिंग कैसे ब्रेक की जाती है अटैक में डिस्टेंस लेके? इट इज सिंपल कर्नल के जब भी अगर कोई एक अटैक जब स्टार्ट करता है और अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है अटैक के लिए और इन बिटवीन अगर जो
ऑफेंसिव एक्शन कर रहा है, अगर वो उसका टाइम जो है वो अपने डिस्टेंस को उसको ब्रेक करता है और प्रिपरेशन पर उसके अगर वो हिट करता है, जिसको हम टेम्पो हिट भी बोलते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट टू ब्रेक द टाइमिंग एंड मेक ए टेम्पो हिट। तो इसमें मैं इतना ऐड कर दूं कि अगर आप जनरली इसकी ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको उसकी एक फीलिंग आएगी। एम आई राइट सागर एंड रशीद? दिस Yes, इज of course. बेसिकली अनकन्वेंशनल एक्शन जो कन्वेंशन सपोर्ट नहीं करते इस एक्शन में। इट्स डिपेंड अपॉन द टाइमिंग, टेम्पो। Yes, Okay. of अगर आप course. अपोनेंट के All depends प्रिपरेशन on पर the आप time. प्रॉपर्ली स्टॉप इट करते हो तो दैट्स अ टाइम इट। अच्छा रशीद, एक और क्वेश्चन है, प्लीज रिमीज अटैक, रिप्रीज अटैक और काउंटर अटैक में एक डिफरेंस बताइए। और सागर, अगला क्वेश्चन है, किसी ने बोला है कि हाउ टू डू पैरी फेंट अटैक। आई डोंट नो व्हाट इज दिस अटैक, मैं फर्स्ट टाइम आया हूं। रशीद, आप पहले रिमीज, रिप्रीज और उसका काउंटर अटैक की एक डेफिनेशन बताइए, एक साधारण भाषा में, हिंदी में। साधारण भाषा में यह है कि जो रमीज है, अगर आप एक अटैक करने जाते हैं और वो आपका हिट नहीं होता, इमीडिएटली आप दूसरा हिट करते हैं और अपोनेंट का उस फेंसिंग टाइम अगर हिट नहीं है तो आपका वो रिमीज काउंट होगा। और रिप्रीज अटैक है कि व्हेन और रिप्रीज और रीडबलमेंट, इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो अगर आप हिट करते हैं और अपोनेंट उस पर रिएक्शन नहीं करता है, आप वापस ऑन गार्ड लाइन पर आकर दोबारा हिट करते हैं, तो इट इज रिप्रेस अटैक। काउंटर अटैक इज वेरी सिंपल। अगर आप रिप्रीज अटैक में यही होगा कि आप एक एक्शन कंप्लीट करते हो, उसके पास एक फेंसिंग टाइम है अटैक स्टार्ट करने का। उस अटैक टाइम में अगर उसने अटैक स्टार्ट नहीं किया और जिसने पहला अटैक पास किया तो उसने सेकंड अटैक स्टार्ट किया, तो डायरेक्ट अटैक होगा तो रिप्रीज आपका अटैक। ऑन गार्ड दिखाना, हाँ, जरूरी है। इसमें जरूरी है कि आप ऑन गार्ड पोजीशन दिखाइए। इट मींस कि यू अगेन प्रिपेयर एंड अटैक, दिस इज रिप्रीज अटैक। ओके सागर, ये पैरी फेंट अटैक किसी ने लिखा है, इफ यू कैन इलैबोरेट ऑन दैट। ये पैरी फेंट अटैक मेरे को भी समझ में नहीं एक्चुअली उनको क्या नॉट इन माय डिक्शनरी आल्सो। फेंट के ऊपर पैरी करना मींस डबल पैरी हो सकता है, शायद एक जगह पे फेंट करके सडनली हम दो पैरी करवाते हैं, एक को फेंट करवा के फिर चेंज करते, तो हम जैसे कॉट 6 करते हैं या 6 कॉट करते हैं, शायद उसको उनके बारे में करना होगा कि दो पैरी सडनली करना, उसको पैरी फेंट बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन है, अगर आप दोनों ये आंसर कर दें बारी बारी, हाउ टू इंक्रीज रिएक्शन टाइम। ट्रेनिंग में रिएक्शन टाइम एक बेसिकली जेनेटिक चीज है जिसको ज्यादा करके हम इंप्रूव नहीं कर सकते। वो हर बंदे के ऊपर उसका रिएक्शन टेम्पो होता है, वो बेसिकली जेनेटिक होता है। एक लिमिट तक हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, दैट टू बी विद द कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। जैसे कि एक्शंस के ऊपर उनको रिएक्ट करने का हम हैबिट बनवाए, क्योंकि हम कोई भी चीज हम बेसिकली आउट में वही परफॉर्म होती है जो हम हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि ये एक्शन ऐसी ट्रिक करनी है। ऑटोमेटिकली वो एक्शन आपको जब बाउट खेलते हैं वो एक्शन अपने आप आएगी, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे हम एक्चुअली उस एक्शन को रिपीट करवा के सेम एक्शन को बार बार रिपीट करवा के हम हमारे ब्रेन को उसको ट्रेन करते हैं कि इस एक्शन के ऊपर ऐसे रिएक्ट करना है। ब्रेन मेमोरी बिल्ड कर रहे हैं। ओके, एनीथिंग? ओके, नाउ आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन सारे कंप्लीट हो गए हैं। मैं दो तीन चीजें मैंने एक चीज और डिवाइस की कि इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। बहुत दिस इज अ वंडरफुल टॉक, आई नीड नॉट से, हमारे पास बड़े एक्सीलेंट स्पीकर और एक्सपर्ट्स हैं। अब मैंने आज शुरू किया, जब आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो मैं सभी को देखता हूं, हु इज मोर वेल ड्रेस्ड, हु इज वेल मैनर्ड, और कोई जो बिल्कुल ही अटपटे तरीके से बैठा हुआ है, कि बिकॉज फेंसिंग इज ए गेम ऑफ जेंटलमैन। ये जेंटलमैन का गेम है, और जेंटलमैन यू कैन नॉट मेक, इट इज इन कंडक्ट। जैसे सागर ने कहा, वो इनबॉर्न गिफ्ट होता है। आज की डेट में दो बंदे थे जो बड़े अच्छे तरीके से बैठे हुए थे, वेरी गुड बैकग्राउंड, वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस। फर्स्ट इज दीपा चौहान, सेकंड इज सुमंत यादव। माई कंप्लीमेंट्स टू यू। कोरोना के चक्कर में अवेयरनेस फैलाने वाले अक्षय थे जिन्होंने अपने मुंह पे मास्क डाला है। मैं आपको पूरी फेंसिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से थैंक यू देता हूं। एक भाई है हमारा, बुरा मत माने, उसका नाम है श्री, वो बेड पे लेटा हुआ था, प्लीज कल से मत कीजिएगा, मैं आपको रिमूव कर दूंगा इससे। डिसिप्लिन इज समथिंग व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। इसमें रिलेटेड अभी जैसे सागर ने बहुत सी चीजें बोली हैं, आपका अटैक ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसने एक चीज और भी बोली है कि आपके अंदर कुछ गिफ्टेड चीजें होती हैं, आप किसी को कॉपी करके फेंसिंग नहीं खेल सकते, चाहे वो कोच है उसकी टेक्निक अलग है, प्लेयर की टीम अलग है। मैं कल परसों आई वाज वाचिंग ए वंडरफुल टेड टॉक, टेड टॉक ऑफ टिम मोरहाउस। टिम मोरहाउस
सैबर का एक फेंसर है यूएसए का, जिसने 2008 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये 15 मिनट टॉक है, टेड टॉक, आप इसको सुनिए, मैं चैट पे इसका नाम भी लिख दूंगा। वो कहता था कि मैं जब खेलने जाता था मेरे पास कोई पैसे नहीं होते, हम तो लकी, हमें गवर्नमेंट फंड करती है, बाहर की कंट्रीज में कोई फंड नहीं करता, लोग अपने खर्चे से जाते हैं। उसने बोला कि मैं पहले 2 साल कोई मैच नहीं जीता, मेरा लोग लॉन्च दोनों पैर पे मारते हैं, मेरा लॉन्च बड़ा अजीब सा था। ये आप टेड टॉक में उसने बताया है। तो प्लीज आप ये टेड टॉक देखिए, टिम मोरहाउस की, मैं टाइप भी कर दूंगा। वंडरफुल सेशन सागर, कल इससे थोड़ा और प्रोग्रेसिव कीजिए। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है इंस्ट्रक्टर से, थोड़ा लेक्चर कम करके अगर हम क्वेश्चन आंसर सेशन में ज्यादा आए तो ज्यादा अच्छा होगा। रेस्ट, Sagar is a well-known coach. All of you can contact him. I would request Sagar once again, thank you very much. As you said, it is a wonderful initiative of Sai and Fai, and lot of contribution. It is binding us. Thank you very much. We will again meet tomorrow. Spread as long as possible. को बताइए आईडी कितनी, और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड रिक्वेस्ट लॉग आउट। थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू।